اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ایک شادی کی تقریب میں چاندنی مسز شاہ کو اتنی پسند آئی کہ وہ فوراً پوچھ گچھ کر کے اس کے گھر رشتہ لے آئیں۔ اتنے اونچے گھرانے سے رشتہ آنے پر سبھی حیران اور پریشان تھے۔ وہ لوگ مل آنر تھے اور یہاں سوائے شکل اور شرافت کے کچھ نہیں تھا۔ چاندنی کے گھر والوں نے انکار تو نہیں کیا لیکن سوچنے کے لیے کچھ مہلت مانگ لی۔ یہ رشتہ قبول کرنے نہ کرنے میں بہت سی قباحتیں تھی۔ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ لوگ اتنے بڑے لوگوں کے شایان شان نہ تو جہیز دینے کی پوزیشن میں تھے اور نہ ہی عالیشان شادی کی حیثیت رکھتے تھے۔ اگر ایک طرف اتنا شاندار رشتہ ٹھکرانا کفران نعمت تھا تو دوسری طرف اتنے زبردست رشتے کو قبول کرنا بھی لمحہ فکریہ تھا۔ دیکھو رقیہ، اتنے بڑے لوگوں میں رشتہ کرنے پر تو میرا دل نہیں تھک رہا۔ ہماری بچی ان کی حیثیت کے مطابق جہیز لے کر نہیں جائے گی، فوری طور پر ان کے ماحول اور مزاج میں گھل مل بھی نہیں پائے گی، تو اٹھتے بیٹھتے اسے اس کی کم مائگی کے تانے دیے جائیں گے۔ غریب گھر کی لڑکی ہونے کی وجہ سے اسے دب کر رہنا ہوگا۔ اس طرح بچی احساس کمتری کا شکار ہو جائے گی۔ دادی نے اپنے خدشات ظاہر کیے تو امی بھی سوچ بچار میں پڑ گئی۔ اماں، آپ کے سب خدشات اپنی جگہ درست صحیح، لیکن یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ لوگ خود چل کر رشتہ جوڑنے آئے ہیں۔ ہم نے خود اور نہ کسی کے ذریعے انہیں اپنی طرف کھینچا ہے۔ وہ ہمارے بارے میں چھان بین کر کے ہی آئے ہوں گے، اور اگر انہیں ہمارے بارے میں زیادہ معلومات نہیں ہوں گی تو ہمارے گھر آ کر ہمارے حالات کا بخوبی اندازہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی ہماری بیٹی سے رشتہ جوڑنا چاہتی ہیں۔ اب آپ یہ سوچئے اماں، یہ تو اللہ کی مرضی اور اس کا حکم ہے نا کہ اس نے ان لوگوں کو ہمارے گھر میں بھیجا۔ اللہ جوڑا بنا کر ہی دنیا میں بھیجتا ہے۔ جب دونوں فریقین کے درمیان مالی اور سماجی فرق زیادہ ہوتا ہے تو اللہ اپنی رحمت اور قدرت سے دونوں کے دلوں کو جوڑ کر قریب کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بس یہی معاملہ ہے۔ انہیں اللہ نے ہمارے گھر بھیجا ہے کیونکہ وہ جوڑا بنا چکا ہے، ورنہ وہ جس مقام پر ہیں انہیں کس کے گھر جانے کی کیا ضرورت؟ رشتے تو خود ان کے آگے پیچھے گھومتے ہوں گے۔ لہٰذا میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے کہ ہم انہیں ہاں کر دیں گے۔ اللہ نے معاملہ بنایا ہے، آگے بھی وہی سنبھالے گا۔ پھر دادی کے خدشات اور وہم اور امی بابا کے یقین اور اعتماد کے ساتھ چاندنی شادی ہو کے شاہ ولاب میں آ گئی۔ شادی اور چاندنی کے گھر والوں کی حیثیت کے مطابق سادگی سے ہو گئی، لیکن ولیمہ بہت شاندار تھا۔ شادی کے بعد دعوتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ شاہ فیملی کے تعلقات بھی انہی کی طرح ہائی فائی لوگوں سے تھے۔ کسی نے گھر پر دعوت نہیں کی، سبھی نے ہوٹلز میں ڈنر دیا اور پوری فیملی کو انوائٹ کیا۔ چاندنی دعوتیں کھا کھا کر بیزار ہو چکی تھی، جن میں صرف گوشت ہوتا تھا۔ اتنا گوشت شاید اپنی زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا، جبکہ اس کے گھر میں ہمیشہ بیلنس ڈائٹ رہتی تھی۔ دالیں، گوشت، سبزیاں، پھل، سبھی کچھ حسب توفیق کھایا جاتا تھا۔ اب دعوتوں سے ذرا فرصت ملی تو خود پر توجہ دینے کا موقع ملا۔ ہنی مون کے لیے کہاں جانا چاہتی ہو؟ فرجاد کے پوچھنے پر چاندنی ایک دم سے چونکی۔ اس کے خاندان میں تو دور دور تک ہنی مون کے چونچلے نہیں تھے۔ وہاں تو بس شادی ہوئی، 2-4 دعوتیں ہوئی اور زندگی اپنی ڈگر پر آ گئی۔ اس کے ذہن میں ایک خوبصورت سی جگہ کا خیال آیا، لیکن پہلے اس نے فرجاد سے پوچھنا مناسب سمجھا، آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میرا تو بس جرمنی جانے کا ارادہ ہے، کچھ بزنس کا کام بھی ہے، ساتھ ساتھ وہ بھی ہو جائے گا، کیا خیال ہے؟ فرجاد نے اپنا خیال بتا کر اب اس کا ارادہ جاننا چاہا۔ میں چاہ رہی تھی کہ ہم عمرہ کے لیے جائیں، اپنی زندگی کی شروعات ہم عمرہ سے کریں۔ اوہ کم آن چاندنی، عمرہ ایک عبادت ہے، اس کا ہنی مون سے کوئی تعلق نہیں۔ خانہ کعبہ کوئی تفریح مقام نہیں اور ہنی مون گھومنے پھرنے کا نام ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ گھومنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ عبادت کی جگہ ہے، لیکن یہ تو دیکھیے کہ وہ کتنی عظیم عبادت گاہ ہے کہ وہاں جانے کے لیے لوگ ترستے ہیں، گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں۔ میں اپنی زندگی کی ابتدا اس نیک عمل سے کرنا چاہتی ہوں۔ یہ نیک عمل تو کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے، لیکن ہنی مون تو کسی بھی وقت نہیں منایا جا سکتا نا، لہٰذا فی الحال تو جرمنی جانے کی تیاری کرو۔ فرجاد اپنی رائے اس پر مسلط کرتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور چاندنی اس کی پشت تکتی رہ گئی۔ کتنا دور تھا وہ اپنے دین سے اور مذہب سے۔ تکلیف کی ایک سرد سی لہر اس کے وجود میں سرایت کر گئی۔
और दिल भी कुछ बोझल सा हो गया। फरजाद के अलावा बाकी घर वालों को भी उसने कभी नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा था और उसके घर में 5 वक्त की नमाज किस कदर खुशू खुजू और मोहब्बत से पढ़ी जाती थी। नमाज किसी हालत में माफ नहीं है, यहाँ तक के बीमारी की हालत में भी छूट नहीं, सिर्फ पागलपन में माफ है, क्योंकि इसमें इंसान का दिमाग उसका साथ छोड़ देता है। सभी हवासों से बेगाना हो चुके हैं। उसने एक तवील सांस ली और हनीमून की तैयारी के लिए उठ खड़ी हुई और चंद दिनों में वो जर्मनी चले गए और ठीक 15 दिन बाद वो दोनों ढेरों तहाई के साथ लदे फंदे हनीमून से वापस लौटे। फरजाद ने जरूरी चीजें कम और गैर जरूरी अशिया ज्यादा खरीदी थी। मम्मी, उन्होंने हनीमून पर बहुत फजूल खर्ची की है। मेरे मना करने के बावजूद बहुत सी गैर जरूरी चीजें भी खरीद ली। चलो कोई बात नहीं, हनीमून पर तो ये सब कुछ चलता है और फिर जब अल्लाह ने दिया है तो खर्च तो करना चाहिए ना। उन्होंने जो गैर जरूरी चीजों में पैसा जाया किया है उससे कई गरीब घरों में कई महीने का राशन डाला जा सकता था। हमने गरीबों की जिम्मेदारी तो नहीं उठाई हुई है, नौरीन भाभी ने तड़क के कहा। बड़े अफसोस और शर्म की बात है कि हमने अभी तक ये जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, जबकि हमारे रब ने ज़कात, खैरात, सदकात अदा करने की सूरत में हमें ये जिम्मेदारी दे दी है। इसकी बात पर सभी बगले झांकने लगे। कोई कुछ बोल ना सका। उसे अंदाजा हुआ कि शायद यहाँ ज़कात भी पाबंदी से अदा नहीं की जाती। आज चांदनी ने खाना खुद पकाया था। यहाँ रोजाना खाने में गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस पकती थी। आज रात के खाने में भिंडी, माश की दाल और लौकी का रायता था। दाल और सब्जी देखकर तो सभी हैरान रह गए और सबके मुंह बन गए। अब्दुल समद भाई के बच्चों ने दाल और सब्जी देखकर शोर मचा दिया। उफ माय गॉड, ये तुमने क्या पका लिया? हम लोग तो ऐसा खाना खाते ही नहीं हैं। मेरे बच्चे कैसे ये सब कुछ खा सकते हैं? नौरीन ने बच्चों से ज्यादा वावेला मचाया। नहीं, ये सब कुछ पसंद नहीं भाभी, ये सब चीजें भी अल्लाह ने खाने के लिए पैदा ही की हैं। जब बच्चों ने ये सब खाया ही नहीं है तो उन्हें कैसे पता कि ये सब अच्छा नहीं? नौरीन बिल्कुल चुप हो गई। साद और सारा, मैं आप दोनों को अपने हाथों से खिलाऊंगी, फिर आपको बहुत मजा आएगा। उसने इतनी मोहब्बत और नरमी से कहा कि बच्चे खामोश हो गए। उसने एक प्लेट में दाल और भिंडी निकाली और दूसरे में रायता, सलाद और खुबानी की चटनी निकाली। पहले आप दोनों बिस्मिल्लाह पढ़िए, फिर हम खाना शुरू करेंगे। मगर हम तो कभी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, साद ने कहा तो सभी शर्मिंदा से होकर नजर झुका गए या चुरा गए। आज से पढ़ेंगे। जो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है उसमें बरकत और भलाई होती है। दोनों ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। फिर चांदनी उन्हें हर चीज के नवाले बना बना कर खिलाने लगी। चाची, ये तो बहुत मजे का खाना है, हमने तो ऐसा कभी खाया ही नहीं। मम्मी और दादो तो हलीमा बीबी से सिर्फ गोश्त पकवाती हैं। चाची, आप रोज ऐसा ही खाना पका दिया करें। आपने देखा ना कि जब अल्लाह का नाम लेकर खाना शुरू किया गया तो वो मजेदार हो गया। आप ठीक कह रही हैं चाची, अब हम रोज बिस्मिल्लाह पढ़ा करेंगे। बाकी सब ने भी कुछ दबे दबे से अंदाज में पसंदीदगी का इजहार किया। हलीमा बेगम गरम गरम रोटियां ला रही थी और सब अभी तक बैठे खा रहे थे। डैडी ने रोटी के बर्तन की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो खाली था। इतने में हलीमा बीबी रोटी ले आई। हलीमा, आज तुमने रोटियां कम पकाई हैं? मम्मी ने खाली बर्तन देखकर पूछा। नहीं बेगम साहिबा, आज तो मैंने रोजाना से ज्यादा रोटियां पकाई हैं। भाई, हमारी बेटी ने खाना ही इतना मजेदार पकाया है कि हम खाते चले गए, डैडी ने हंसते हुए कहा। मीठे में चांदनी ने रसमलाई बनाई थी। सबने खूब खाई और फिर भी सब यही कहते रहे कि मुझे तो थोड़ी सी मिली। ससुराल में चांदनी का पकाया हुआ पहला ही खाना सबने बहुत रग़बत से खाया और खूब तारीफ की। अब आप दोनों शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। इसका क्या मतलब होता है चाची? बच्चों ने हैरत से पूछा। तो एक बार फिर सब शर्मसार हो गए। इस घर में इस किस्म के तकल्लुफात में पढ़ने का रवाज नहीं था। इसका मतलब है, ए अल्लाह, हम तेरी रहमतों और नेमतों पर तेरा शुक्र अदा करते हैं। यहाँ सब मॉडर्न और बड़े आदमी थे। मजहब पर अमल करना दकियानूसियत थी। उसकी समझ में ये बात नहीं आती थी कि मॉडर्न और दौलतमंद लोगों ने मजहब को अपने लिए माफ क्यों समझ लिया था। वो फैसला नहीं कर पाती थी कि वो यहाँ आकर गर्दाब में फंस गई है या ये सब भंवर में फंसे हुए हैं। इस घर के मर्द जुमा की नमाज भी नहीं पढ़ते थे, इसीलिए उनके औलादों में भी ये आदत नहीं थी। यहाँ आए दिन पिकनिक, पार्टी और हाई टी के प्रोग्राम बनते रहते थे। तफरीहात के लिए मुल्की और गैर मुल्की दौरे होते रहते थे। अभी तक किसी को हज और उम्रा का ख्याल नहीं आया था। दुनिया की चकाचौंध ने उनकी आंखें चुंधिया दी थी। दुनिया में इस कदर गर्क थे कि दीन की कश्ती में सवार होने का ख्याल ही नहीं आता था। आज छुट्टी थी और वो सब टीवी लाउंज में बैठे टीवी देख
रहे थे। शाम की चाय पर चांदनी ने शामी कबाब और चने की दाल का हलवा पकाया था। मैंने आप दोनों के मौलवी साहब को अभी तक नहीं देखा, आप दोनों कौन से सिपारे पढ़ रहे हैं? चाची, हमारे मौलवी साहब नहीं आते। क्यों? ये सुनकर कुछ ज्यादा हैरत नहीं हुई, उसे शक तो हो गया था। आज हकीकत खुलकर सामने आ गई, क्योंकि हम कुरान शरीफ नहीं पढ़ते। बच्चों ने मासूमियत से जवाब दिया। फरजाद, आप किसी मौलाना का फौरी बंदोबस्त करें ताकि बच्चे कुरान पढ़ना शुरू करें। मैं कहाँ मौलवी ढूंढता फिरूंगा, कैसी बातें कर रही हो तुम? फरजाद नागवारी के साथ तेजी से बोला। कैसी बातें मैं कर रही हूँ या आप? दोनों बच्चे 8-9 साल के हो गए हैं और अभी तक कुरान पढ़ाना शुरू नहीं किया, जबकि 10 साल की उम्र में तो कलाम पाक हिफ्ज हो जाता है। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो मैं खुद कर लूंगी। नौरीन भाभी बैठी उल्टे सीधे मुंह बना रही थी। उस वक्त वो शॉर्ट स्लीव्स की शर्ट पहने गले में दुपट्टा डाले बैठी थी। सास, ससुर और देवर उनके सामने थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह और लिहाज नहीं था, जबकि चांदनी की नजरें शर्म से झुकी जा रही थी। फरजाद, मगरिब की अजान हो रही है, ये नाच गाना हटा के कोई और चैनल लगा दीजिए, बल्कि बेहतर ये होगा कि आप इस वक्त टीवी बंद कर दीजिए। उसने सर पर दुपट्टा लिया तो सारा जल्दी से भागे उसके पास आ गई। चाची, मैं भी दुपट्टा ओढ़ूंगी। उसने जल्दी से चांदनी का दुपट्टा अपने सर पर रख लिया तो उसने मोहब्बत से उसे अपने साथ लगा लिया। ओह माय गॉड मम्मी, आप तो इस घर के बाहर अब मदरसा का बोर्ड लगा दीजिए, नौरी ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा और पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई। तुम्हें क्या जरूरत है हर वक्त दर्स देने की? फरजाद भी चिढ़कर उसके ऊपर चढ़ दौड़ा। दर्स? वो हैरान रह गई। फरजाद, हमारा दीन ही हमारा असल है, हमारी बुनियादें हमारे मजहब पर खड़ी हैं। हम अपने मजहब से हट के और कट के खुशहाल, कामयाब, मुकम्मल और नॉर्मल जिंदगी नहीं गुजार सकते। जब बच्चा पैदा होता है तो उसके जिस्म में ग़िज़ा से पहले कानों के जरिए अजान पहुंचाई जाती है ताकि उसे पता चल जाए कि वो मुसलमान है। अल्लाह अजान ही के जरिए दिन में 5 मरतबा हमें अपनी तरफ बुलाता है। सब खामोशी से सुन रहे थे। उसकी कोई बात भी गलत नहीं थी जिस पर कोई आवाज उठाता। सब बेजार सी शक्लें बनाए बैठे रहे, लेकिन नमाज के लिए कोई भी नहीं उठा, इसलिए कि ना किसी को आदत थी और ना इस घर का माहौल था। चांदनी फजर की नमाज के बाद कुरान शरीफ पढ़ती थी, फिर घर के अंदर ही वॉक करती थी। घर इतना बड़ा था कि वॉक करने के लिए बाहर जाने की जरूरत ही नहीं थी। सब उस वक्त मजे से सो रहे होते थे। चांदनी को लगता कि सिर्फ वही नहीं सो रहे बल्कि उनके नसीब भी सो रहे थे। चांदनी ने अपने भाई के जरिए मौलाना का बंदोबस्त कर लिया था। अब बच्चों ने कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया था और मौलवी साहब ने उन्हें नमाज भी याद करवा दी थी। वो दोनों अब अक्सर चांदनी के साथ नमाज पढ़ते थे। फरजाद, माह रमजान शुरू होने वाला है और मैं ज़कात देना चाहती हूँ। रात के खाने से फारिग होके वो दोनों कमरे में आए तो चांदनी ने कई दिन से सोची हुई बात कह डाली। मैं बाकियों को तो मजबूर नहीं कर सकती, लेकिन हम अपनी आमदनी के हिसाब से ज़कात जरूर देंगे। दे देना, जितने पैसे चाहिए हो ले लेना। फरजाद ने फराग दिली का मुजाहिरा किया। उस दिन मम्मी और नौरीन बैठी खाने पीने की चीजों की लिस्ट बना रही थी। मम्मी, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन रही है, कोई दावत वगैरह है क्या? कोई एक दावत? अब तो हर रोज दावतें होंगी, कुछ घर में और कुछ होटल्स में, उन्होंने हंसते हुए कहा। घर में होने वाली दावतों में भी ज्यादातर खाना तो बाहर से ही आएगा, लेकिन फिर भी कुछ चीजों की जरूरत तो पड़ ही जाती है। लेकिन दावतें किस सिलसिले में होंगी? अभी तो रमजान मुबारक का महीना शुरू होने वाला है। चांदनी ने हैरत से पूछा। तो ये सब रमजान की ही तैयारी तो है। हमारे घर में तो रमजान में हर 3-4 दिन बाद एक अफ्तार डिनर पार्टी होती है। फिर इसके अलावा रोजाना की घर के अफ्तार की भी तैयारी होती है। नौरीन भाभी के मुँह से ये बात सुन के उसके अंदर एक हैरत अंगेज और खुशगवार सी खुशी की लहर दौड़ गई और फिर वो बेचैनी से रमजान शुरू होने का इंतजार करने लगी। बहुत से लोग जो पूरा साल नमाज नहीं पढ़ते वो अक्सर रमजान में दीन की तरफ आ जाते हैं। चांदनी के ससुराल वाले भी शायद इन्हीं लोगों में से थे। फिर वो मुबारक दिन भी आ गया जब टीवी पर रमजान मुबारक के चांद का ऐलान हुआ। रात के खाने के बाद चांदनी नमाज और तरावी के लिए खड़ी हो गई। उसने देखा कि ना घर में खवातीनें नमाज पढ़ी और ना घर के मर्द हजरात नमाज और तरावी के लिए मस्जिद गए। फरजाद, आप नमाज और तरावी के लिए मस्जिद नहीं गए? चांदनी ने नमाज से फारिग होकर फरजाद से पूछा। लेकिन मैंने तो कभी तरावी नहीं पढ़ी। फरजाद ने उसे बताया जैसे ये बहुत अच्छा काम है। जरूरी तो नहीं कि कोई का अच्छा काम कभी ना किया हो तो आइंदा भी ना किया जाए। आप अल्लाह से तौबा करके आज से नमाज और तरावी शुरू कर दीजिए। अभी तो मैं नहीं जा रहा, पूरा महीना पड़ा है, पढ़ लेंगे तरावी, इस साल ना सही अगले साल सही। फरजाद ने बेपरवाही से कहा तो सभी उसकी बात पर मुस्कुरा दिए, लेकिन कोई अपनी जगह से टस से मस ना हुआ। ये कार्ड तुम अपने घर वालों को दे देना,
लेना। फरजाद ने कई कार्ड चांदनी की तरफ बढ़ाए तो वो हैरान रह गई। घर में तो कोई शादी नहीं है, फिर ये कार्ड कैसे? उसने कुछ उलझ के हैरत से पूछा। ये अफ्तार और डिनर के कार्ड्स हैं। चांदनी ने हैरत और खामोशी से कार्ड्स थाम लिए, क्योंकि हर काम ऐसे ही पैमाने पर होता था। 12 दिन के अफ्तार और डिनर का एहतमाम किया गया था। कुछ घर में थे और कुछ शानदार होटल्स में थे। उसे अंदाजा हुआ कि यहाँ नमूदो नुमाइश और शानो शौकत के नाम पर बेतहाशा पैसा लुटाया जाता है। दुनियावी जिंदगी में मगन होके ये लोग दिन की असल हकीकत को बिल्कुल फरामोश कर बैठे थे। ये सब बहुत भटके हुए और बहके हुए लोग थे जो दुनियावी जिंदगी को ही सब कुछ समझ बैठे थे, दीन से बिल्कुल गाफिल थे। लेकिन इसी लम्हे उसने फैसला कर लिया कि वो हिम्मत नहीं हारेगी और सबको नहीं तो कम से कम अपने शोहर को जरूर मजहब की तरफ ले आएगी। सुबह नाश्ते की टेबल पर सब बड़ी रुग़बत से नाश्ता कर रहे थे। आओ बेटा तुम भी नाश्ता करो, कहाँ थी तुम? डैडी ने उसे नाश्ते की ऑफर की। नहीं डैडी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रोजा है। ओ, डैडी ने खींच कर ऐसे ओ कहा जैसे खुदा न खास्ता उसे कोई प्रॉब्लम है और वो इस वजह से कुछ खा ही नहीं सकती। वो दोबारा से खाने में मसरूफ हो गई। बेटा तुमने क्यों रोजा रख लिया? इतनी देर तक भूखी कैसे रहोगी? मम्मी ने तशवीशनाक अंदाज में कहा तो वो दंग रह गई। चंद लम्हे तो वो कुछ बोल ही ना सकी। मम्मी, रोजा भूख लगने ना लगने वाली चीज नहीं है, रोजा इबादत है। तुम कोई मौका महल नहीं देखती हो, बस हर वक्त हर जगह दर्द शुरू कर देती हो। फरजाद ने झिंझला के कहा। चांदनी प्लीज ढंग से नाश्ता करने दो, तुम खुद तो खा चुकी हो ना, अब हमें भी स्कूल से खाने दो। वो खामोशी से बिना कुछ कहे वहाँ से हट गई। शाम में सबने बड़े एहतमाम से अफ्तार किया। लग ही नहीं रहा था कि उनमें से किसी का रोजा नहीं है। चांदनी ने फरजाद से ज़कात के लिए पैसे लिए और घर के सब मुलाजमिन को रमजान का राशन, ईद के कपड़े और ईदी दी। हलीमा बीबी की बेटी की शादी के लिए उन्हें कुछ पैसे और जहेज का सामान ला कर दिया। तमाम मुलाजमिन खुश हो गए। उन्हें पहले इस तरह कुछ नहीं दिया गया था। तीसरे रोजे को उनके घर में अफ्तार डिनर का एहतमाम था। शाम को लोगों के आने से पहले चांदनी ने लॉन के एक कोने में नमाज पढ़ने के लिए चादरें लगवा दी। ये लॉन में चादरें क्यों पड़ी हुई हैं? नौरीन भाभी ने हैरत से पूछा। चादरें पड़ी हुई नहीं हैं भाभी, मैंने नमाज के लिए बिछवाई हैं। चांदनी ने अफसोस और तकलीफ दे अंदाज में जवाब दिया। तुम कुछ करने से पहले पूछ तो लिया करो, यहाँ इस क्लास के लोग नहीं आएंगे। नमाज के लिए भी क्लास डिफरेंस होती है क्या? ये तो हर क्लास के मुसलमानों पर फर्ज है। चांदनी को नौरीन की बातों ने हिलाकर रख दिया। भाभी, जब इस क्लास के लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं तो रोजे भी नहीं रखते होंगे, फिर अफ्तार डिनर का एहतमाम करने की क्या जरूरत है? चांदनी, शायद तुम्हें पता नहीं है कि अफ्तार करना और करवाना बहुत सवाब का काम है। वो दिल पर बोझ लिए खामोशी से वहाँ से हट गई। मम्मी और नौरीन बहुत एहतमाम से तैयार हुई थी, जबकि चांदनी ने लॉन का खूबसूरत सूट पहना और हल्की सी लिपस्टिक लगाई थी। आहिस्ता आहिस्ता मेहमान आना शुरू हो गए। उनके मेहमान भी उन्हीं जैसे लग रहे थे। आज अफ्तार में मौलवियों को भी इनवाइट किया आपने? एक खातून ने हंस के नमाज की चादरों की तरफ इशारा किया तो उनके इर्द गिर्द खड़े बकिया लोगों के चेहरों पर भी मुस्कुराहट आ गई। मजहब सिर्फ मौलवियों के लिए नहीं है, ये तो हर मुसलमान के लिए है। चांदनी की बात अनसुनी करते हुए वो खातून इधर उधर हो गई। सबने खुशगपियों के दौरान खूब डटकर अफ्तार किया। उसके मैके से अम्मी, बाबा और छोटी बहन सदफ आई थी। अफ्तार के बाद मर्दों में बाबा अकेले खड़े नमाज पढ़ रहे थे और अंदर लाउंज में चांदनी के साथ उसकी अम्मी और सदफ पढ़ रही थी। चांदनी ने नमाज में अल्लाह से बड़े दिल से सबके लिए दुआ मांगी। या अल्लाह, ये रास्ते से भटके हुए लोग हैं, इन्हें सीधी राह पर ले आ। उनके यहाँ भी सिर्फ 2 अफ्तार पार्टियां हुई थी कि घर में एक भौचाल सा आ गया। बाबा और अब्दुल समद भाई को बिजनेस में जबरदस्त नुकसान हो गया। बिजनेस में अक्सर छोटे मोटे नुकसान होते रहते थे। कारोबार इतना वसी और दौलत इतनी ज्यादा थी कि ये लोग ऐसे नुकसानात की परवाह भी नहीं करते थे। लेकिन ये बहुत भारी नुकसान था। बाबा को हार्ट अटैक हो गया और अब्दुल समद भाई का बीपी शूट कर गया। दोनों हॉस्पिटलाइज हो गए। घर पे एक सोगवारी की सी कैफियत छा गई। चांदनी ने ज़कात दी थी, शायद इसीलिए अल्लाह ने उन पर करम किया। एक तो कारोबारी घाटा, ऊपर से घर के 2 मर्द अस्पताल में थे। मम्मी और नौरीन भाभी बिल्कुल नुचड़ कर रह गई। चांदनी हर लम्हा उन्हें तसल्लियां देती रहती। दोनों के सरों पर दुपट्टे आ गए और कमरों में जाए नमाजें बिछ गई। जब उन पर पड़ी तो खुदा याद आ गया। सबके हर वक्त अस्पताल के चक्कर में घन चक्कर बने हुए थे। ऐसे में चांदनी ने उनका बहुत साथ दिया। उसने उनके साथ ऑफिस को भी देखा और घर और अस्पताल की जिम्मेदारियां भी पूरी करती रही। साथ साथ रोजे भी चल रहे थे। अब मम्मी और नौरीन भाभी भी रोजे रख रही थी। डैडी और अब्दुल समद सेहतियाब होकर घर आ गए। चांदनी ने दोनों के आराम और खाने का बहुत ख्याल रखा। दूसरा अशरा चल रहा था। सब इबादत में मशगूल हो गए। सबको देखकर चांदनी के अंदर तक ठंडक उतर जाती थी।
डैडी और अब्दुल समद भाई नमाज पढ़ने मस्जिद जा रहे थे। चांदनी के कहने पर फरजाद भी जाने लगे। फारिग वक्त में डैडी ज्यादातर कुरान पाक और उसकी तफसीर पढ़ते रहते थे। डैडी बीमारी की वजह से रोजे नहीं रख रहे थे, बाकी इबादत जारी रखी थी। इनके अलावा सभी रोजे रख रहे थे। इस आने से पहले सारा घर दुख दर्द में मुब्तला होने की वजह से रोजे नहीं रख पा रहा था। एक झटके ने सबकी बीमारियां और कमजोरियां निकाल दी। घर का माहौल बहुत अच्छा और खुशगवार हो गया। सदकात, खैरात और ज़कात दी जा रही थी। अब डैडी की तबीयत बहुत बेहतर थी, लेकिन वो अभी रोजे रखने के काबिल नहीं हुए थे। अफ्तार और मगरिब की नमाज से फारिग होके सब लाउंज में बैठे थे। चांदनी बेटा, आपने ठीक कहा था कि मजहब के बगैर इंसान कुछ नहीं है। वो अंधे कुएं में पड़ा हुआ है। जो पैसे के बल बोते पर खुद को मॉडर्न समझते हैं, फॉरवर्ड कहलवाने में फख्र महसूस करते हैं, हम सब तो बहुत पीछे थे, बड़े खसारे में थे। इंसान दौलत के नशे में चूर होकर अपना असल भी फरामोश कर बैठता है, और जब पकड़ा और एहतसाब का वक्त शुरू होता है तो उसे खुदा और दीन दोनों याद आ जाते हैं। जब हम पर पड़ती है तो हम अल्लाह से रुजू करते हैं, वरना तो हमें अपने रब की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करने का ख्याल तक नहीं आता। सब नजरें झुकाए या शायद एक दूसरे से नजरें चुराए शर्मिंदा से बैठे थे, क्योंकि सभी ऐशो इशरत में अपने दीन को भुलाए बैठे थे। तुमने ठीक कहा था बेटा, अल्लाह हमें दिन में 5 बार खैर और भलाई की तरफ बुलाता है, लेकिन हम इस खैर और भलाई को पाने और समझने की कोशिश ही नहीं करते। डैडी भीगी आवाज में धीरे धीरे बोल रहे थे और बाकी सबकी खामोशी भी उन्हें डैडी की बात से मुतफिक जाहिर कर रही थी। शुक्र है परवरदिगार का, जिसने मरने से पहले ही नेक हदायत दे दी और हमें गफलत की जिंदगी से निकाल लिया। मुझे तो अब कारोबार के इस नुकसान का अफसोस है ही नहीं। वो नुकसान तो मेरे और मेरे घर वालों के लिए निहायत खुशगवार साबित हुआ। इस तरह हमारे रब ने हमें गफलत की जिंदगी से भी निकाल लिया। डैडी, अल्लाह ने जब हमें खुद फलाह की तरफ बुलाता है तो इसका मतलब है कि वो हमसे गाफिल नहीं, वो हमसे मोहब्बत करता है। तो फिर वो कैसे हमें गफलत और गुमराही के अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ सकता है। ठीक कह रही हो बेटा, बेशक वो बड़ा रहमान और रहीम है। बेशक वो बंदों के ऐबों पर पर्दा भी डालता है और ऐबों से पाक भी कर देता है। आज मैं इस बात पर फख्र करता हूँ कि हमारे घर में तुम जैसी लड़की बहू बनकर आई है। आप ठीक कह रही हैं, हमने उसे कुछ नहीं समझा। मम्मी ने चांदनी को गले लगाते हुए कहा, ये लीजिए डैडी, मैं चाहता हूँ कि ये खुशखबरी आप ही सुनाएं। फरजाद ने एक लिफाफा डैडी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। डैडी ने लिफाफा खोल कर देखा और मुस्कुरा दिए। डैडी, आप मुस्कुराए जा रहे हैं, हमें भी इस खुशखबरी में शरीक कीजिए। नौरी ने धीरे से हंसते हुए कहा, भाई खुशखबरी ये है कि हम सब उम्रे के लिए जा रहे हैं और रमजान मुबारक का आखिरी अशरा हम वहीं गुजारेंगे। तुम सब तैयारी शुरू कर दो, परसों हमारी रवानगी है। खुशी और तशक्कुर के एहसास से चांदनी की आंखें झिलमिला गई। अल्लाह ने उसकी दुआएं कबूल कर ली थी और निहायत मुबारक महीने में इन सब को हदायत दे दी थी। यकदम इन सब के जहन पलट गए थे। उस परवरदिगार ने इनके दिल बदल दिए थे। देर से ही सही, लेकिन उन सब ने अपने रब को पहचान लिया था।